this is going to be the last part of forensic psychiatry. इसमें we will start with the criminal responsibilities we will see in some other situations as well, such as somnambulism. Somnambulism means sleepwalking. Som means sleep and ambulism means walking. In case of sleepwalking, if a person does a crime, then he is not liable. He is not responsible for that. In case of somnolentia, that is commonly known as sleep drunkenness, in this case also the person is not liable. In case of delirium tremens or alcohol withdrawal, the person is not liable. In case of run amok or homicidal impulse in cannabis abuse, here also the person is not liable. So the person is not liable in 4 cases: somnambulism, that is sleepwalking; somnolentia, that is sleep drunkenness; delirium tremens; run amok. Run amok means homicidal impulse in cannabis abuse. So in case of sleepwalking, sleep drunkenness, delirium tremens, run amok, that is homicidal impulse in cannabis abuse, the person is not liable. The person is liable in case of kleptomania and hypnosis, but the person will be liable to the crime in case of kleptomania and hypnosis. So there is a case study. There was a case between Papathi Amma versus the state of Tamil Nadu. Okay, it was the case between Papathi Amma and the state of Tamil Nadu. Madras High Court decision. तो जो अक्यूज्ड थी, शी हैज़ रिसेंटली गिवन बर्थ टू अ चाइल्ड. ठीक है, और एक रात शी जम्प्ड इनटू द वेल विद द बेबी. शी जम्प्ड इनटू द वेल विद द बेबी. द अक्यूज्ड वाज रेस्क्यूड बट द इन्फेंट ड्रॉन्ड एंड डाइड. ठीक है, तो द अक्यूज्ड हैज़ गिवन बर्थ टू अ बेबी एंड वन नाइट शी हैज़ जम्प्ड इनटू अ वेल with the baby. She was rescued, but the baby drowned and died. So then murder charges were filed on that mother, but she claimed to be unaware of her action due to sleepwalking. ठीक है, and sleepwalking में the accused is not liable to the crime because she was unaware of her action. So the defense of insanity was accepted because it was the case of sleepwalking. ठीक है, and sleepwalking में the accused is not liable. So the defense of insanity was accepted and sleepwalking was covered under section 84 of IPC. Okay. The next topic is Mental Health Care Act 2017. This is different from the Mental Health Act of 1987. तो मेंटल हेल्थ एक्ट अलग है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट अलग है. ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट इज़ नॉट एन अमेंडमेंट ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट ऑफ 1987. मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 का था और मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो है वो 2017 का है. ठीक है, इसमें 2 नए टर्म्स है. पहले जो टर्म यूज़ होता था वो था लुनाटिक या इंसेन. ठीक है, नाउ वी यूज़ द टर्म मेंटली इल पर्सन. नाउ लुनाटिक या इंसेन यूज़ नहीं करना है. द न्यू टर्मिनोलॉजी इज़ मेंटली इल पर्सन. ठीक है, पहले मेंटल हॉस्पिटल्स टर्म था. नाउ द टर्म इज़ मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट. तो व्हाट आर द न्यू टर्मिनोलॉजीज? मेंटली इल पर्सन एंड मेंटल हेल्थ स्टैब्लिशमेंट्स. ठीक है, अब हम लुनाटिक या इंसेन यूज़ नहीं करते. नाउ वी यूज़ द वर्ड मेंटली इल पर्सन एंड इंस्टेड ऑफ मेंटल हॉस्पिटल्स, मेंटल हेल्थ स्टैब्लिशमेंट. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ मेंटल इलनेस. Mental illness, it is a substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation और memory. ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ों का डिसऑर्डर हो रहा है? थॉट का, मूड का, परसेप्शन का और ओरिएंटेशन का. इट इज़ अ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, थॉट, दैट इज़ थिंकिंग, मूड, परसेप्शन एंड ओरिएंटेशन
और मेमोरी, थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन और मेमोरी का सब्सटेंशियल डिसऑर्डर हो रहा है दैट ग्रोसली इम्पेयर्स जजमेंट, बिहेवियर, capacity to recognize reality or ability to meet the ordinary demands of life. ठीक है. Mental illness is the substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory. It is the substantial disorder of thinking, mood, perception, orientation or memory that grossly impairs judgment, behavior, capacity to recognize reality और ability to meet the ordinary demands of life. ठीक है. इन चीज़ों के डिसऑर्डर के कारण, थॉट, मूड, परसेप्शन, ओरिएंटेशन, मेमोरी के डिसऑर्डर के कारण क्या क्या इम्पेयर हो रहा है, कुछ ग्रॉसली इम्पेयर हो रहा है जजमेंट, बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड द एबिलिटी टू मीट ऑर्डिनरी लाइफ डिमांड्स. जो ऑर्डिनरी लाइफ डिमांड्स है, जजमेंट है, बिहेवियर है, रियलिटी को रिकॉग्नाइज करने का जो कैपेसिटी है, वो सब इम्पेयर हो रहा है. मेंटल इलनेस इज़ द सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ मूड, परसेप्शन, थिंकिंग, ओरिएंटेशन एंड मेमोरी दैट ग्रोसली इम्पेयर्स द जजमेंट, बिहेवियर, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी और द एबिलिटी टू मीट द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ लाइफ. ठीक है. मेंटल इलनेस में ड्रग इंटॉक्सिकेशन इज एक्सक्लूडेड. Drug intoxication is excluded in mental illness. Then AD. AD stands for Advanced Directive. Advanced Directive, it is the direction towards medical treatment even before the condition arises. ठीक है. तो advance में मतलब before. It is the legal document given direction about the future treatment if the person loses mental capacity. मतलब वो condition arise भी नहीं हुआ, उसके पहले ही ये डायरेक्शन दे दिया जाता है. एडवांस डायरेक्टिव इज़ गिवन बिफोर द कंडीशन अराइजेज. ठीक है. इट इज़ द डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेडिकल ट्रीटमेंट इवन बिफोर द कंडीशन अराइजेज. इसका 3 कंपोनेंट है. अगर कोई मेंटल इलनेस हुआ है तो उस केस में, मेंटल इलनेस के केस में ये दोनों कंपोनेंट है. मेंटल इलनेस के केस में एडवांस डायरेक्टिव में क्या चीज़ें आ गई? द वे ही विशेस टू बी केयर्ड, द वे ही डज नॉट विशेस टू बी केयर्ड, द वे ही विशेस टू बी केयर्ड, द वे ही विशेस नॉट टू बी केयर्ड. ये दोनों एडवांस डायरेक्टिव में आएगा और उसके साथ साथ हिज नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. दैट विल डिसाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पेशेंट. तो एडवांस डायरेक्टिव ये एक डायरेक्शन है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इवन बिफोर द कंडीशन हैज़ अराइज. और ये अगर मेंटल इलनेस के केस में है तो क्या कॉम्पोनेंट्स होगा? द वे द पर्सन वॉन्ट्स टू बी केयर्ड, द वे ही विशेस नॉट टू बी केयर्ड. ठीक है. और फिर वो अपना नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा विच विल डिसाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पेशेंट. सो दिस इज़ एडवांस्ड डायरेक्टिव. इसके फीचर्स क्या है? ड्यूटी ऑफ द साइकाट्रिस्ट क्या है? टू ट्रीट द पेशेंट इन लाइन विद द एडवांस डायरेक्टिव. एडवांस डायरेक्टिव के जो कंपोनेंट्स है उसमें जो चीज़ें लिखी हैं कि कैसे केयर करना है, कैसे नहीं केयर करना है, उसके अकॉर्डिंग साइकाट्रिक को अपना ड्यूटी निभाना है. बट एडवांस डायरेक्टिव इज़ नॉट एप्लीकेबल इन एमरजेंसी. द साइकाट्रिस्ट कैन अप्लाई मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड इफ़ दे डू नॉट वॉन्ट टू फॉलो द AD. तो साइकाट्रिस्ट को AD फॉलो करना है. बट इन केस द साइकाट्रिस्ट डोंट वॉन्ट टू फॉलो द AD, उसको लग रहा है कि कुछ गलत चीज़ें हैं, देन ही हैज़ टू अप्लाई टू द मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड. इन केस द psychiatrist does not want to follow the advanced directive, he has to apply to the mental health review board. Okay, he has to apply to the mental health review board in case he does not want to follow the advanced directive. Then prohibited procedures. Mental Health Care Act 2017 के अकॉर्डिंग क्या प्रोसीजर्स प्रोहिबिटेड है? सो ECT, that is electroconvulsant therapy. ECT stands for electroconvulsant therapy. So electroconvulsant therapy without the use of muscle relaxants or anesthesia is prohibited. Electroconvulsant therapy for minors is prohibited. Sterilization of men or women
इंटेंडेड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट में तुम स्टेरिलाइजेशन नहीं कर सकते, दैट इज़ प्रोहिबिटेड। कंपल्सर टॉन्श्योरिंग, ठीक है, कंपल्सरी टॉन्श्योरिंग दैट इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। कि जो भी मेंटल हेल्थ में, मेंटल हॉस्पिटल में, मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट में जो भी पेशेंट्स हैं, दे आर प्रोहिबिटेड टू वियर यूनिफॉर्म्स। ऐसा नहीं है कि उनको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनना है, ठीक है। एंड चेनिंग इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। उन पेशेंट्स को चेन करके नहीं, चेन में बांध करके नहीं रख सकते, उनको एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी नहीं है। स्टेरिलाइजेशन एज अ ट्रीटमेंट इज़ प्रोहिबिटेड। देन ECT विथआउट एनेस्थेसिया और मसल रिलैक्सेंट इज़ प्रोहिबिटेड। ECT माइनर्स को नहीं दे सकते। एंड कंपल्सरी टॉन्श्योरिंग इज़ प्रोहिबिटेड। ठीक है, कंपल्सरी टॉर्चरिंग का मतलब होता है शेव हेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं उनका हेड शेव करवाना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रोहिबिटेड। शेविंग हेड ऑफ द मेंटली इल पेशेंट इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। उनको कोई यूनिफॉर्म पहनने के लिए फोर्स करना वो भी प्रोहिबिटेड है। चेन करना उनको, दैट इज़ ऑल्सो प्रोहिबिटेड। स्टेरिलाइजेशन एज in the name of treatment is prohibited. So these are the prohibited procedures under the Mental Health Care Act 2017. Next is decriminalization of suicide. तो पहले जो suicide था, it was considered to be a crime, but now it has been decriminalized. Why? Because any person who attempts to commit suicide shall be presumed, unless proved otherwise, to have severe stress and shall not be tried or punished. कोई भी पर्सन अगर सुसाइड कमिट किया है तो उसको पनिश नहीं करना है, उसको ट्राइड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा मानना है कि उसको कोई सीवियर स्ट्रेस था, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। ठीक है, अगर कुछ भी चीज़ें नहीं प्रूव हो रही हैं तो सबसे पहले क्या अज्यूम करना है कि द पर्सन वॉज इन सीवियर स्ट्रेस, and that's why he shall not be punished or tried. Any person who attempts to commit suicide shall be presumed, unless proved otherwise, to have severe stress and should not be tried or punished. ठीक है, note abandonment to suicide is punishable. ठीक है, किसी को सुसाइड करने के लिए फोर्स करना, किसी और को सुसाइड करवाना, दैट इज़ punishable. ठीक है, सो अबैंडनमेंट टू सुसाइड इज़ पनिशेबल। बट अगर कोई खुद सुसाइड कर रहा है तो दैट इज़ नॉट पनिशेबल। बट अगर कोई किसी दूसरे को इनकरेज कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है या इंस्टिगेट कर रहा है, ठीक है, तो देन दैट इज़ पनिशेबल। देन एडमिशन, तो जो एडमिशन है अकॉर्डिंग टू मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 27 दो टाइप का है। एक इंडिपेंडेंट एडमिशन में द मेंटली इल पर्सन विल रिक्वेस्ट द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज फॉर एडमिशन। तो इंडिपेंडेंट एडमिशन में क्या होता है, जो मेंटली इल पर्सन है वो खुद रिक्वेस्ट कर रहा है मेडिकल ऑफिसर को। ठीक है, मेंटली इल पर्सन विल रिक्वेस्ट। ठीक है, और माइनर्स के एडमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव अप्लाइज टू द मेडिकल ऑफिसर फॉर एडमिशन ऑफ माइनर। माइनर के एडमिशन के लिए जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है वो अप्लाई करेगा मेडिकल ऑफिसर को। देन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन बाय टीम ऑफ 2, उसके बाद उस माइनर का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा बाय ए टीम ऑफ 2। इंचार्ज मे एडमिट द माइनर, ठीक है, बट द रिप्रेजेंटेटिव, द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव may stay with the minor. Admission of the minor to be concerned, to be admission of the minor informed to the concerned board within 72 hours. But अगर minor का admission हो रहा है then it should be informed to the concerned board within 72 hours. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एडमिशन मतलब जो मेंटली इल पर्सन है वो मेडिकल ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है who is in charge of admission. माइनर्स का एडमिशन कौन करवाएगा, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अप्लाई करेंगे मेडिकल ऑफिसर फॉर द एडमिशन ऑफ द माइनर। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होगा बाय अ टीम ऑफ 2।
इंचार्ज मे एडमिट द माइनर, और जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है दैट मे स्टे विद द माइनर, बट जो माइनर का एडमिशन हो गया उसके 72 आवर्स के अंदर इट शुड बी इन्फॉर्म्ड टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, इट शुड बी इन्फॉर्म्ड टू द कंसर्न्ड बोर्ड विद इन 72 आवर्स। तो वो था इंडिपेंडेंट एडमिशन। सपोर्टेड एडमिशन, सपोर्टेड एडमिशन किस केस में ज़रूरी है? उस केस में जब जो इंसान है ही नीड्स हाई सपोर्ट नीड्स। सपोर्टेड एडमिशन इज़ फॉर अ पर्सन हु नीड्स हाई सपोर्ट नीड्स, ठीक है। एंड द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव मे अप्लाई टू द मेडिकल ऑफिसर फॉर एडमिशन एंड 2 इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस टू बी डन, ठीक है। इस केस में 2 इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस नीड टू बी डन। जो एडमिशन है 2 टाइप का है। इंडिपेंडेंट में जो मेंटली इल पर्सन है वो खुद रिक्वेस्ट कर सकता है, सपोर्टेड में बिकॉज ही इज़ इन हाई सपोर्ट नीड्स, तो उस केस में जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अप्लाई करता है मेडिकल ऑफिसर को, और इस केस में 2 इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है। देन इमरजेंसी ट्रीटमेंट। इमरजेंसी ट्रीटमेंट किस केस में करेंगे? एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन इनिशिएट ट्रीटमेंट इफ़ देयर इज़ अ थ्रेट टू सेल्फ, अदर्स, ऑब्जेक्ट्स और प्रॉपर्टी, ठीक है। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ट्रीटमेंट इनिशिएट कर सकता है कब? अगर वो जो मेंटली इल पर्सन है इफ़ ही इज़ अ थ्रेट टू सेल्फ और अ थ्रेट टू अदर्स और ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी, ठीक है। उस केस में इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकता है व्हेन दैट पर्सन इज़ अ थ्रेट टू सेल्फ, अदर्स और प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और ये मैक्स 72 आवर्स तक ट्रीट कर सकते हैं। इमरजेंसी ट्रीटमेंट किस केस में होगा? व्हेन ही इज़ अ थ्रेट टू सेल्फ, अदर्स और प्रॉपर्टी और ऑब्जेक्ट, एंड द पेशेंट कैन बी ट्रीटेड फॉर 72 आवर्स। राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन। मेंटली इल पर्सन का क्या क्या राइट्स है? राइट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ये तो है राइट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम मेंटली इल पर्सन और फ्रॉम द बोर्ड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, ठीक है। कोई भी अगर रिसर्च करना है मेडिकली इल पर्सन पे तो हमें कंसेंट रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है, मेडिकली इल पेशेंट का भी या बोर्ड का। सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट मस्ट बी टेकन फ्रॉम द मेंटली इल पर्सन और द बोर्ड फॉर रिसर्च। रिसर्च करना है तो कंसेंट लेना पड़ेगा, एंड ही हैज़ द राइट टू एसेस मेडिकल रिकॉर्ड्स। सो ये सारे राइट्स हैं। राइट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर कोई रिसर्च करना है देन इन्फॉर्म्ड कंसेंट हैज़ टू बी टेकन एंड राइट टू एसेस टू द मेडिकल रिकॉर्ड्स।